స్వదేశీ ఉత్పత్తులను వినియోగించడం ద్వారా భారత్ను త్వరలోనే పూర్తి అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా, ఉపాధి కలిగిన దేశంగా తీర్చిదిద్దుతామని స్వదేశీ జాగరణ మంచ్ నేషనల్ కన్వీనర్ ఆర్ సుందరం, నేషనల్ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ కాశ్మీర్ లాల్ తెలిపారు. ఈ మేరకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోని గెస్ట్ హౌస్ లో స్వదేశీ జాగరణ మంచ్ ఆధ్వర్యంలో విలేకరుల సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. సమావేశంలో సుందరం, కాశ్మీర్ లాల్ మాట్లాడారు. స్వదేశీ జాగరణ మంచ్ ప్రతి సంవత్సరం దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రదేశాల్లో కేంద్ర కార్యవర్గ సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తుందన్నారు. ఈ సమావేశంలో భాగంగా ఈ నెల 20-21వ తేదీలో హైదరాబాద్ లోని ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ గెస్ట్ హౌస్ లో కేంద్ర కార్యవర్గ సమావేశాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుందన్నారు. దక్షిణ భారతదేశంలో స్వదేశీ భావజాలాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడానికి ఈ సమావేశాన్ని తెలంగాణ నిర్వహించడం జరుగుతుందని తెలిపారు. భారతదేశం అంతర్గతంగా, బాహ్యంగా ఎన్నో ఆర్థిక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటుందన్నారు. అయితే స్వీయ విధానాల ద్వారా భారత్ జీఎస్టీ 2 స్లాబ్లుగా సరళతరం చేసిందని తెలిపారు. ద్రవ్యోల్బణం, బ్యాంకు వడ్డీ రేట్లు నియంత్రణలో ఉండగా నిరుద్యోగం అత్యల్ప స్థాయిలో ఉందన్నారు. ఆగస్టు త్రైమాసికంలో 6-8% వృద్ధి రేటు సాధించి 10% వినియోగదారుల డిమాండ్ పెరుగుదల ద్వారా కఠినమైన ప్రపంచ పరిస్థితుల మధ్య కూడా భారత్ నిరంతరంగా ఎదుగుతున్న విషయం స్పష్టమవుతుందన్నారు. విభిన్న ప్రాంతాల్లో అనునిత్యం జరిగేటువంటి యాక్టివిటీస్ లో భాగంగా రకరకాల రాష్ట్రాల్లో 6 నెలలకు ఒకసారి రాష్ట్రీయ కార్యసమితి బయట సెంట్రల్ వర్కింగ్ కమిటీ మీటింగ్ అంటాము. ఆ మీటింగ్ నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు హైదరాబాద్ లో మనం ఈ మీటింగ్ నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఈ మీటింగ్ 20 చేసినటువంటి పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ నమస్కారం. మన మధ్యలో పెద్దవాళ్ళు శ్రీ డాక్టర్ శ్రీరామూర్తి గారు, వీరు స్వదేశీ జాగరణ దక్షిణ ప్రదేశ్, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, తెలంగాణ ఈ 3 రాష్ట్రాలకు కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. వృత్తిరీత్యా వీరు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కర్ణాటకలో ఎకనామిక్స్ లో ప్రొఫెసర్ ఉన్నారు. వీరు సమావేశం చేస్తారు. We stand for the evolution of indigenous economic policy and self-reliant India. Periodically we meet and take stock of the global and national situation and try to come out for findings and suggest solutions. As all of you are aware, there are very serious challenges in the global economy as well as the national economy today. The Swedish government is meeting in Hyderabad at a very crucial point of time. There are challenges in global economy and we are facing challenges from tariff imposed by US. The Prime Minister has given a call for craft of Swadeshi, followed by our sister organizations also. So in the next 2 days, we will deliberate on all these issues, how to combine this tariff imposed by the United States of America, as well as steps forward to take our nation forward and achieve a goal of self-reliant India, and also how to face these immediate challenges standing before us. So with these few remarks, I request my colleagues, Sri Satish Kumar, to take forward this program. To be the first of the honor today, as introduced by है, लेकिन अमेरिका का जो नया शासन आया डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में, उसने भारत सहित दुनिया भर पे डिफरेंट टैरिफ लगाया. तो 25% टैरिफ तो भारत पे उस पर लगाया, उसने सब देशों पर लगाया. कनाडा उसका बिल्कुल फ्रेंड कंट्री था, मैक्सिको फ्रेंड कंट्री था, यूरोपियन यूनियन सारी उसकी फ्रेंड कंट्री है, जापान फ्रेंड कंट्री ऑफ अमेरिका, सब पर लगाया. भारत पर भी लगाया 25%, लेकिन भारत पर एक्स्ट्रा 25% इसलिए लगाया है कि रूस से हम तेल ले रहे हैं. बिल्कुल ही जस्टिफाइड नहीं है वो किसी भी कारण से, वो एक्सेप्टेबल भी नहीं है. बिकॉज जिस यूरोप का लड़ाई चल रही है उसके साथ वो यूरोप ले रहा है उससे नेचुरल गैस. आप लोगों को मालूम हो, रूस का नेचुरल गैस का सबसे बड़ा बायर स्वयं यूरोप है. और जो यूक्रेन क्या नाम है रशिया के साथ युद्ध में लगा है, वो यूक्रेन हमारे से तेल ले रहा है, और वो तेल जो हम रशिया से ले रहे हैं उसको हम शोधन करके भेजते हैं. स्वयं अमेरिका ये तेल लेता है वहां से, और फर्टिलाइजर्स और दूसरी आइटम रूस से लेता है. चाइना हमारे से भी अधिक तेल लेता है, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट चूज टू क्या नाम है इम्पोज 25% टैरिफ ऑन इंडिया. दिस आर वेरी अनजस्टिफाइड, और भारत ने उसको स्ट्रांगली कन्वे किया, अदर जियोपॉलिटिकल फॉरम से इंडिकेट किया. एससीओ में प्रधानमंत्री मोदी गए तो उसके कारण से भी प्रभाव हुआ, और अमेरिका ने अभी टेंशन ईज करने के लिए अपना जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उसका नाम है बियॉन्ड लिंच,
बियॉन्ड लिंच, उसको भारत में भेजे और उन्होंने 7 घंटे की लंबी वार्ता हुई है। दैट इज ए पॉजिटिव स्टेप और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका जल्दी से अपने ये 50% टैरिफ वापस ले लेगा और भारत के साथ एक समझौता हो सकता है। अदरवाइज भी भारत ने अपना जो एक्सपोर्ट है वो 40 अन्य देशों के साथ बढ़ाने के लिए डिफरेंट पैक्ट हमारे हो रहे हैं। यूएई के साथ हमारा एफटीए हो गया है, इंग्लैंड के साथ हमारा एफटीए हो गया है, ईयू से हम लोग इस दिसंबर में हम करने वाले हैं, फाइनल करने वाले हैं। हमारा समझौता काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, तो ईयू से भी हमारा समझौता हो जाएगा। इसलिए भारत इंटरनेशनली इस समय ट्रेड की पोजीशन में डाइवर्स करते हुए बहुत अच्छी स्थिति में जा रहा है। हमारे को पूरी उम्मीद है कि इस साल का हम जो हमारा जीडीपी है, हमारा एक्सपोर्ट है, दोनों में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेंगे। तो किसी को भी इस टैरिफ से डरने का कारण नहीं है। तीसरा फैक्टर है कि भारत ने अपनी डोमेस्टिक बढ़ाने के लिए, कंजप्शन बढ़ाने के लिए और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए न केवल जीएसटी रिफॉर्म की है, बल्कि सरकार ने, विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारे देश में आह्वान किया है, जिसका आह्वान पहले से स्वदेशी जागरण मंच कर रहा था कि स्वदेशी की खरीद करनी चाहिए। भारत अगर पूरी तरह से स्वदेशी खरीद पर आ जाता है, क्रय विक्रय पर, हमारे लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को, लोकल प्रोडक्ट्स को खरीदने की प्रक्रिया करते हैं हर चीज में जो मैक्सिमम अवेलेबल है, और भारत की 90-95% चीजें लोकली प्रोड्यूस अवेलेबल है, क्वालिटी वाइज भी और प्रोडक्ट प्राइस वाइज भी दे आर कम्पिटिटिव आल्सो। तो इसलिए भारत की अगर स्वदेशी पर जाता है भारत, तो भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाएगा, एडेड विद जीएसटी रिफॉर्म और एडेड विद डिफरेंट एफटीएस विद द डिफरेंट कंट्री। भारत 7% की जीडीपी ग्रोथ अगले साल यानी इस साल के अंत में जरूर ले लेगा, ऐसा हमारे को विश्वास है। इस कार्य समिति में भारत में स्वदेशी स्वावलंबी भारत अभियान ये पूरी तेजी से फैले, तेलंगाना में भी बड़ी तेजी से फैले, साउथ में भी जाए और सारे देश के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में नीचे तक जाए। इसकी डिटेल्स योजनाएं यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ डिफरेंट हमारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये लगभग 12 सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ आ रहे हैं हैदराबाद की इस मीटिंग में, और हम लोग एक व्यापक स्वदेशी स्वावलंबी अभियान सारे देश में चलाने वाले हैं, जिसमें स्वदेशी मेलों का बहुत बड़ी मात्रा में आयोजन है। मैं आपको वो भी देता हूं कि 200 से अधिक स्वदेशी मेले सारे भारत में इस वर्ष हम आयोजित करने जा रहे हैं। लगभग 500 स्वदेशी संकल्प यात्राएं जिलों में ये हम करने जा रहे हैं, बड़ी मात्रा के अंदर। उसके अलावा देश भर के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर हम बड़ी मात्रा में उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन करके लाखों युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप और स्वदेशी खरीदने के लिए ये हम लोग प्रेरित करने वाले हैं सारे उसमें से। और बड़ी मात्रा में स्वदेशी व्यापारी जुटान, हमारे जो व्यापारी हैं, अभी हम लोगों ने नागपुर के अंदर उनकी 2 दिन की वर्कशॉप की है। देश भर के 42 ट्रेडर्स एसोसिएशन ने ये तय किया है कि वे देश भर में स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए सभी व्यापारियों को, जो कि भारत में लगभग 4.5 करोड़ व्यापारी उसमें लगे हुए लोग हैं, व्यापार में लगे हुए लोग हैं, ये 4.5 करोड़ लोग, और भारत में स्वदेशी परचेज और स्वदेशी खरीद बढ़े, इसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। इस नाते से एक बड़ा प्रयत्न होने वाला है। स्वदेशी जागरण मंच अभिनंदन करता है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी, क्योंकि गत 78 वर्षों में ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कि जिसने स्वदेशी जागरण की जो बेसिक कॉल है कि सारा देश स्वदेशी प्रतिभा पर, स्वदेशी क्रय विक्रय पर, स्वदेशी प्रोड्यूस पर, स्वदेशी क्वालिटी पर, स्वदेशी रिसोर्सेज पर फोकस करे। स्वदेशी जागरण मंच की जो मुख्य अपील है उसको प्रधानमंत्री जी ने पूरे जोरदार तरीके से समर्थन दिया है। लाल किले के अपने 15 अगस्त के भाषण से भी उन्होंने उठाया है, और सारे देश में स्वदेशी एक महाजनजागरण का अभियान बनाने में उन्होंने हमारी सहायता की है, इसलिए हम उनका धन्यवाद और अभिनंदन भी करते हैं। ऐसे सब विषय
इस अभियान के यहाँ 2 दिन की और बैठक में हम लोग लेने वाले हैं। मेरी तरफ से इतना।